وبالوالدین احسان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر اپنی توحید، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو آتا ہے، اسے حقیقت میں لانے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا، بڑی سے بڑی چیز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ وہ حقیقت میں تو انسان کو اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو والدین انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حقیقی خدا تمہارا میں ہوں، دوسری طرف مجازی خدا تمہارے والدین۔ میں تمہیں دنیا میں لا کے ان کے حوالے کرتا ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، وجود میں بخشتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں سارے اعضاء پیدا میں کرتا ہوں، اور جب تم دنیا میں آتے ہو تو تمہاری نگہداشت کی، تمہاری پرورش کی، تمہاری ہر چیز کی نگرانی کی جو ڈیوٹی ہے وہ تمہارے والدین ادا کرتے ہیں۔ تمہارے والدین تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کھانا کیا ہے، کہاں سے کھانا ہے۔ تم تو اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنی تکلیف نہیں بیان کر سکتے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر اسے کچھ تکلیف ہو جائے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ پیٹ میں درد ہے، وہ بس روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو والدین تمہاری ایک ایک ضرورت پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماں اپنے رات کی نیندیں قربان کر دیتی ہے، باپ اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، باہر سے تمہارے لیے کماتا ہے، اور تمہارے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، چھابڑے اٹھاتا ہے، ریڑیاں لگاتا ہے، دفاتر میں جاتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ یہ سارے کام تمہارے والد ہر جگہ محنت مزدوری کر کے کرتے ہیں۔ دوسری طرف تمہاری ماں ہے، وہ تم ادھر تھوڑا سا ہلتے ہو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، تم تھوڑا سا روتے ہو وہ اپنی نیند بھول جاتی ہے، اور تم تھوڑا سا بھوک کا اظہار کرتے ہو وہ اپنی بھوک اور پیاس بھول جاتی ہے۔ تو والدین بچپن سے جس طرح اولاد کو پالتے ہیں، یہ اسی کو احساس ہو سکتا ہے جس کی اپنی شادی ہو اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی کی اولاد نہ ہو جائے اس وقت تک اسے اپنے والدین کی حقیقت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے اور پھر جب وہ ان بندھنوں میں بندھ جاتا ہے اور مشکلات میں گرتا ہے، اولاد جو ہے اس کی دیکھ بھال، اس کی پرورش اور اس کی دکھ اور تکلیف جب اس کے سامنے آتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں اپنی توحید کو ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت ہے، بندگی ہے، وہ صرف
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं होगा। इबादत करनी है, झुकना है तो सिर्फ खुदा के साथ, और नजर व न्याज देनी है तो सिर्फ खुदा के लिए। अगर तस्बीहात पढ़नी है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुलाकात के लिए आता है तो कोई तोहफ़ा लेके आता है, आप मेरे लिए क्या लेके आए? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने माल व दौलत पेश नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेश नहीं किया, दुनिया की चीज़ें नहीं, ये दुनिया तो खुदा की नज़र में हकीर थी। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बारगाह में जो तोहफ़ा पेश किया वो ये था, अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, मैं अपनी सारी कौली इबादतें, अपनी बदनी इबादतें और अपनी माली इबादतें या अल्लाह तेरे लिए लेके आया हूँ। या इलाहुल आलमीन, मैं अपना माल खर्च करता हूँ तो तेरे लिए, या अल्लाह मैं इबादत करता हूँ तो तेरे लिए, या अल्लाह मैं अपनी तस्बीहात पढ़ता हूँ तो तेरे लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ये जितनी भी कौली बातें हैं या अल्लाह बदनी और फेली बातें हैं, ये सब आपके लिए हैं, आपके अलावा किसी और के लिए नहीं। और जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत का फैसला कर दिया तो उसके बाद साथ ही फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। क्यों? दुनिया में लाने का ज़रिया तो मैं बनता हूँ, फिर दुनिया में परवान चढ़ाने का ज़रिया ये तुम्हारे वालिदैन बनते, इसलिए वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आया। एक दफ़ा रिवायत में आता है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी थे, सैकड़ों सहाबा की ज़ियारत की, बल्कि आपकी सुन्नत तहनीक हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा की। तो आपने देखा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, आज के दिन थे, आपने एक आदमी को देखा, उसने एक गुदड़ी उठाई हुई है और यहाँ अपने कंधे पे रखी हुई है, और उस बोरी को उठा के वो तवाफ़ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसी ने पूछा, हज़रत ने आगे बढ़ के कहा, अल्लाह के बंदे, कि ये गुदड़ी उतार दे, ये बोरी एक तरफ रख दे, ये तुमने वज़न उठाया हुआ है, और इस बोरी के बोझ से आज़ाद होकर तवाफ़ कर, ये बोझ उठा के क्यों तवाफ़ कर? तो उसने अर्ज़ किया, हज़रत ये बोझ नहीं, ये बोरी जो है इसमें कोई भारी चीज़ नहीं, इसके अंदर मेरी वालिदा है, और मैं अपनी वालिदा को वो शाम के इलाके से लाया हूँ, और इस तरह मैंने अपनी वालिदा के 10 हज, तकरीबन रिवायत में आता है गालिबन 10 हज करवाए। क्या अब भी मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है कि नहीं किया? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जोश में आके फरमाया, तू शाम से नहीं, अगर तू दुनिया के उस किनारे से जहाँ ज़मीन शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, पानी शुरू हो जाता है, अगर दुनिया के उस कोने से लेके पैदल माँ को उठा के आए और बैतुल्लाह का इस तरह 100 दफ़ा हज करे, तो तू अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता कि जो दर्द ज़ेह के वक़्त तूने हरकत की थी और तेरी माँ को तकलीफ़ हुई थी, उसका भी तू हक अदा नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाइए माँ की कदर व कीमत क्या है। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि बाप से ज़्यादा अपनी माँ का एहतराम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल सल्लम, मेरे ऊपर मेरी माँ का हक ज़्यादा है या बाप का? हुज़ूर ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उसने पूछा, आपने फिर वही जवाब दिया। 3 दफ़ा उन्होंने ये सवाल किया, और चौथी दफ़ा जब पूछा तो हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हारे वालिद। तो यानी 3 हक माँ के बताएं, फौकियत रखते हैं वालिद पर, वो कमज़ोर होती है, उसने बचपन में आपको पाला है, उसने दुख और तकालीफ को देखा है, इसलिए उस माँ का जो हक है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। लिहाजा
शरीयत में वालिदैन के हुकूक तो बताए हैं और उनमें बाप का हक अपना बताया, लेकिन माँ का हक जो है उसको वालिद के हक पर फौक रखा है, ज़्यादा ऊंचा रखा है। अब अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को आज हमने देखना है कि हम इस पर कितना अमल करें। अफसोस है कि माँ बाप के साथ जिस बेरुखे अंदाज में पेश आते हैं हम लोग, या मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, आज दोस्त की बात को तरजीह दी जाती है, माँ बाप की बात को तरजीह नहीं दी जाती। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत की निशानियों में से है कि माँ बाप से, वालिदैन से दोस्त की बात को तरजीह दी जाएगी, यानी उनकी बात को सुना ही नहीं जाएगा, अहमियत ही नहीं दी जाएगी। आज ये है बाहर दोस्तों के साथ बैठ के उनकी बात तो मानी जा रही है, लेकिन माँ बाप की बात को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। ये वो ज़माना है जो कुर्ब क़यामत का है, और इस दौर में हमें चाहिए कि हम अगर फितनों से बचना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के साथ वाबस्ता हो जाएं, कुरान और सुन्नत के साथ गुफ्तगी इख्तियार करें, उसको मजबूती से पकड़ लें, और जो भी अहकामात हैं सबसे पहले कुरान और सुन्नत से पूछें कि अल्लाह क्या फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। जब अल्लाह जल्ल शानुहु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा पता चल जाए कि इस मसले में अल्लाह के नबी का ये हुक्म है और तरीका ये है, अल्लाह का हुक्म ये है, अमर ये है, तो फिर उस पर अपनी जान निशावर कर दें, फिर देखें दीन पर चलने का कैसे मज़ा आता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।